السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے قلب کا جاری ہونا۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور ان کا دل جاری ہوا ہوتا ہے۔ یعنی دل کا جاری ہونا کیا ہے؟ دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو مگر اس کی توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو جاری دل کہتے ہیں۔ ہر وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ قلب کا جاری ہونا ابتدا میں تحرک کی کیفیت اور وقت کے ساتھ تذکرہ کی کیفیت، اللہ اللہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے سالک کو کہتے ہیں کہ اس کا قلب جاری ہو گیا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں بھولتا۔ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب، تیرا تصور میری نگاہوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میرے ہونٹوں پہ ہے اور تیری یاد میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ اے محبوب، تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ تو بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو باخدا لوگ کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے، ذکر کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر ان پر خاص رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے قلب کا جاری ہونا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ذرا اگلی بات بھی سمجھیں کہ یہ قلب کا جاری ہو جانا، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر ایک کی یہ کیفیت ہو۔ تو کیفیات کی بات عام طور پر تو یہی ہوتی ہے، مگر کوئی پکا اصول نہیں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جناب کوئی پکا اصول بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ تو کیفیت ہے، کیفیتوں میں تو شیطان دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہی اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری کروا دے کہ حقیقت میں کچھ اور ہو۔ اور یہ صاحب محسوس کر رہے ہوں کہ ہمارا دل جاری ہے اور دل ذکر کر رہا ہے، تو پھر کوئی راسخ پکی بات ہونی چاہیے۔ تو ہمارے مشائخ نے پکی بات بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا
जिस बंदे का दिल जारी होता है ज़रूरी नहीं कि उसको हरकत महसूस हो, आवाज़ महसूस हो या कुछ और बात महसूस हो। ये महसूसात एक तरफ रख दीजिए। उसके असरात ये होते हैं कि बंदे के ऊपर शरीयत के अहकामात जारी हो जाते हैं। बंदे के ऊपर क्या होता है? दिल का हुक्म उसके आज़ा पर जारी हो जाता है। ज़रा बताएं, जब इंसान के दिल का हुक्म आज़ा पर जारी हो जाए, जब आज़ा दिल के ताबे बन जाएं, जब दिल अल्लाह ताला का फरमा बरदार बन जाए और आज़ा दिल की इत्तिबा कर रहे हों, यानी दिल की जो हालत है वो कैफियत आज़ा पर तारी हो जाए। दिल का हुक्म जब आज़ा पर तारी हो जाना होता है तो उस बंदे का दिल जारी हो जाता है। ये पक्की बात है। लिहाजा जिस बंदे का दिल जारी हो, हम देखेंगे कि इत्तिबा सुन्नत में आगे बढ़ रहा होगा। अब हमारे पास एक पक्की चीज आ गई। अब कोई साहब आ जाए कि जनाब मेरा दिल तो बड़ा जारी है और इसको नमाज की तौफीक नहीं, तो उसके दिल जारी होने को क्या करेंगे जनाब? तो हम कहें कि नहीं भाई, आपका दिल जारी नहीं बल्कि आपको कोई धोखा दे रहा है, छुपे तरीके से, अंदरूनी तरीके से। तो हमारे पास एक पक्की चीज आ गई, और वो पक्की चीज क्या है? शरीयत की इत्तिबा। तो जिस बंदे का दिल जारी हो जाता है और जिस बंदे को कैफियतें महसूस होंगी तो उसके असरात ये होंगे कि वो बंदा इत्तिबाए सुन्नत में, इत्तिबाए शरीयत में, तक़वा तहारत में, ज़ुहद फिर दुनिया में आगे बढ़ेगा। उसके अंदर तरक्की महसूस होगी। अब यहाँ से सालिक का अंदाज़ा हो जाता है उनके शेख को कि भाई उसका दिल जारी हुआ या नहीं हुआ। तो जिस बंदे के अंदर इत्तिबाए सुन्नत में, अमल में तरक्की महसूस करते हैं, इखलास में तरक्की महसूस करते हैं, तो फिर शेख को फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि उस बंदे के दिल पर असरात मुरतब हुए हैं या नहीं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जनाब शेख एक लतीफ़े के बाद दूसरे लतीफ़े का सबक कैसे दे देते हैं? तो भाई इसी तरह दे देते हैं कि पहले लतीफ़े के जो असरात हैं, जब सालिक की शख्सियत में वो शेख को नज़र आ जाते हैं तो फिर वो एक के बाद दूसरे सबक की तरफ इंसान को मुतवज्जह करते हैं। तो ये सुलूक है। सुलूक कहते हैं उस रास्ते को, और सालिक कहते हैं उस रास्ते पर चलने वाले को। अब कोई बंदा मुराक़िबा ही ना करे और वो वजीफ़ा भी ना करे, ताज्जुद ही ना पढ़े, तक़वा तहारत इख्तियार ना करे, वो सालिक नहीं, वो हालिक हो जाता है, यानी अपने आप को हिलाक करने वाला। वो सालिक नहीं, वो तो हालिक है, हिलाक करने वाला। वो तो हिलाक होने वालों में से है। वो तो महरूम है उन नेमतों से। जनाब जो खड़ा हो जाए तो खड़े होने के वक्त उसका सफ़र तो तय नहीं होता। तो जो बंदा मुराक़िबा ना करे, ज़िक्र अस्कार ना करे, विर्द वज़ाइफ ना करे, शेख से राबिता ना करे, वो तो खड़े होने वाले की तरह है। उसका सफ़र कैसे तय होगा? इसलिए मुराक़िबा की, ज़िक्र अस्कार की, तहज्जुद की, आमाल की पाबंदी सालिक के लिए ज़रूरी है। और आजकल के सालिक तो बस ये चाहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, जो करना है पीर साहब खुद ही कर लेंगे। ये बड़ी गफलत है। बस जो करना है वो पीर साहब ही करेंगे, ये गलत बात है। वो जाने, उनका काम जाने। इसलिए आते हैं कि आजकल के पीर साहबान से
तीन बातें करते हैं। पहली बात क्या करते हैं, आते ही करते हैं, हजरत मैंने बड़े बुजुर्गों को देखा और बड़े बुजुर्गों के पास रहा हूँ, मगर मैंने बैअत आपसे की है। यानी एहसान जतलाते हैं कि बड़े पीर मिलते थे, मार्केट में बहुत बहुतात थी पीरों की, मगर हजरत साहब में मैंने आपको चुना है, यानी मेरा आप पर एहसान है। दूसरे लफ्ज़ों में तो पहली बात ये करते हैं, हजरत फलां बुजुर्ग की सोहबत में बैठा, फलां की महफिल में भी गया, फलां के पास भी बैठा रहा, ये सारे तस्किरे करते हैं। तस्किरे करके फिर कहते हैं बस मैंने सिर्फ आपसे बैयत की, बस हजरत मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, आप ही तवज्जो डाल दें, वैसे मुझे जल्दी वापस भी जाना है। ये रही पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि ये करते हैं कि हजरत बस वो आजकल कुछ कारोबार जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, बस कुछ पढ़ने को बता दें और वैसे मैंने जल्दी वापस जाना है मुझे। ये रही दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात करते हैं हजरत बस वो बीवी जो है वो पूरी तरह हर बात नहीं मानती, कुछ पढ़ने को भी बता दें वो मेरी मुट्ठी में आ जाए, वैसे मैंने जल्दी घर जाना है। ये तीन बातें करते हैं। पहला ऐलान कि बस मुझसे वजीफे विर्द तो होते नहीं, बस आप ही कुछ तवज्जो फरमा दें, और दूसरी बात कारोबार की, और तीसरी बात घर की बीवी की। तीन बातें करके कहते हैं वैसे मैंने जल्दी घर जाना है। तो अब बताएं कि फिर पीर हजरात क्या करेंगे जब एक बंदा इलाज का टाइम ही नहीं दे रहा। कभी ऐसा हुआ है कि आप अस्पताल में गए हों और आपने कहा हो डॉक्टर साहब तबीयत मेरी बड़ी ख़राब है, तो आपने जो करना है करें, मगर मुझे जल्दी वापस जाना है। डॉक्टर कहेगा जनाब एडमिट होना पड़ेगा, तो भाई मशाइख अगर कहें कि आप महफिल में आ जाएं, मुराक़बे में आएं, ज़िक्र में आएं, आप इज्तिमा में आएं, तो ये भी तो एडमिट करने वाला मसला होता है, मगर बंदा उससे दामन बचाता है। तो इसलिए हमें इस इलाज की भी फिक्र करनी चाहिए। तो दिल जारी होने को आपने समझ लिया, किसको कहते हैं दिल का जारी होना। अक्सर औक़ात ये कैफियत महसूस होती हैं। अक्सर औक़ात क्या होता है, ये कैफियत महसूस होती हैं, मगर उन कैफियत के जो असरात हैं उनसे पता चलता है कि यह कैफियत सच्ची हैं या झूठी हैं। तो अगर इंसान इत्तिबाए सुन्नत में तरक्की पा रहा है तो अब उसका दिल जारी है, और अगर उसको कैफियतें भी बड़ी लग रही हैं, मगर कबीरा गुनाह का भी मुर्तकिब हो रहा है, धड़ल्ले से ये झूठ भी बोलता है, ऊपर ला इलाह और अंदर से काली बला, तो फिर उसके तहर्रुक को क्या करें, तज़क्कुर को क्या करेंगे, उसकी कैफियत को क्या करेंगे, उसकी कैफियत को पाँव की नोक से उछाल देंगे। भाई अगर इत्तिबाए सुन्नत में आगे नहीं बढ़ रहे तो तुम्हारी कैफियत को हम क्या करेंगे। इसलिए सैयदुस सालिहीन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाब में किसी को बताया, अपने वफ़ात के बाद फरमाने लगे कि वो सब इबादत ख़त्म हो गईं, वो सब कैफियत भी ख़त्म हो गईं, और वो जो आखिरी रात में हमने जो तहज्जुद की 2 नफिल पढ़ते थे, वो तहज्जुद के नफिल हमें काम आ गए।
اسی لیے اسی واسطے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑی کیفیت میں جو ہے ارادہ رکھتے ہیں مگر شریعت و سنت میں آگے نہیں بڑھتے، ہمارے مشائخ نے ان کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کا ذکر لسان لخوا اور ذکر قلب وسوسہ کیسی پکی باتیں کی ہیں کہ اگر تم شریعت کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ جی بڑی میری کیفیات ہیں، تو انہوں نے کہا جس بندے کو لخوا ہوتا ہے اس کا منہ ہلتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا اس بندے کا ذکر لسان لخوا اور اس کا ذکر قلب وسوسہ اس کے اوپر کچھ اور نہیں۔ عزیزو بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ اس موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو بھی جاری کر دے۔ ہمیں ہمارے سینے میں دل ہیں مگر ہمارے سینے کے دل مردہ ہیں، دنیا پرست ہیں۔ پروردگار ہمارے دلوں کو دین پرست بنا لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔